मैं बता The Maritime Mentors. Assalamu alaikum everyone. Welcome to the Maritime Mentors. This is your host Mishal Fatima, and today we will be embarking on a journey of captivating the lives of our teachers here at Wales College. In each episode, we will be focusing entirely on their impeccable journey, unprecedented stories and much more. With here today on our first episode is Sir Danish Tabassum. Hello sir, how are you? How's it going? Walaikum assalam, Mishal. I'm fine. How are you? I'm good, alhamdulillah. So, why I'm here? Oh, I wanted to have I had a lot of questions about you. Like, you're my inspiration. Like, personally, I admire you a lot. Okay. I idolize you, Okay. Business studies has always been a field of my interest ever since I came to college. And Sir Danish has been my extreme support system in that. So, hats off to you, sir. Thank you so very much. So, my question to you is that what inspires you to be you? Like, is there any background story? Maybe something, a climax that we need to talk about? I think when I was in my student phase, I saw a lot of teachers like playing with the careers, I guess. So I was not handled properly. I was not taught properly. And I always believe कि जो students की जो requirements होती हैं वो teachers नहीं फुलफिल करते थे. रीज़न पता है क्या था? रीज़न ये था कि एक बीच में पैच ऐसा आया था जिसमें लोगों को जब जॉब्स नहीं मिलती थी ना, तो वो टीचर बन जाते थे. और अनफॉर्चुनेटली उस एरा के अंदर आई वॉज अ स्टूडेंट. सो माई टीचर्स वर गुड बट दे वर जस्ट टीचर्स, दे वर नॉट मेंटोर्स. और उनको सब्जेक्ट के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी जो बुक्स से ज़्यादा वो दे सके. They were confined to उनको सिर्फ पेपर आता था. उनको सिर्फ पेपर आता था. वो पेपर के मुतालिक बात कर सकते थे और वो भी कुछ पेपर्स के मुतालिक बात कर सकते थे. इवन मैथ्स के अंदर भी ऐसा ही होता था. वो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाते थे जो उनकी टेक्निक्स मैथ्स के अंदर सिर्फ उन क्वेश्चंस में ही सही हो सकती थी. और जब कोई ट्रिकी क्वेश्चन आ जाया करता था सब सोच रहे होते थे. सो I always believe that there has to be something. So during my bachelor's, I basically taught one of my teachers. Really, Yeah, you did? Yeah. Wow, that's great. That's electronics, I guess. Yes, electronics वो subject था. Wow. क्योंकि मेरा BS Computer Sciences से. तो उस वक्त मैं टीचर ए से पढ़कर टीचर बी को मैं पढ़ाया करता था. तो टीचर बी अपने सेक्शन में जाके पढ़ाते थे. That's quite honorable. और फिर पता चल गया कि मैं तो पढ़ा सकता हूँ. और जब मैं पढ़ा सकता हूँ तो फिर मैंने कहा फिर मास लेवल पे जनरेशन ख़राब की जाए. So yeah, that's I think all of us are in safe hands when it comes to business studies. Like, exactly. Yeah. I think I safe tried my level best कि जो बिजनेस का जो कॉन्सेप्ट है मेक्स इट ईजियर बिकॉज इट्स अ वेरी ड्राई कॉन्सेप्ट. बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि करके पता चलती हैं और बुक्स में जो लिखा होता है वो रियलिटी में नहीं होता. तो आई हैव टू गिव देम द राइट इन्फॉर्मेशन व्हाट दे रियली नीड टू अंडरस्टैंड. तो फिर उस पर चीज़ें थोड़ी सी मजाक मस्ती के अंदर भी चली जाती हैं. और बोर होने में सबसे पहले मैं खुद बोर होता हूँ. No, sir, I think आपकी क्लास के अंदर I don't think there's any one student. हाँ, मकसद अगर मैं बुक पढ़ाना शुरू करूँ ना तो सबसे पहले मैं बोर हूँ. सब सो रहे होंगे. सबसे पहले मैं सो रहा हूँगा. ठीक है. So that's the reason. I feel like, sir, if there's an individual जो high achiever है, if you're scoring good, that doesn't mean you're gonna be a good teacher. So what are your opinions on this? Is that true? देखें, what I believe in, you need to know how to implement. इसका मतलब नहीं है कि you should be scoring highest. Makes sense. So I always believe that when you understand the concept, any concept, whether it be a science concept or a business concept or a humanities concept, unless and until you don't know how to apply and where to and when to apply, yes, then आप definitely नहीं कर सकते. For example, मैं ऐसी एक बात करता हूँ. बच्चे पूछते हैं सर इम्पोर्टेंट क्या है. ठीक है. Yes. अब कोई बच्चा MBBS कर रहा है. ठीक है. MBBS में वो टीचर से पूछता है कि जी क्या इंपॉर्टेंट है. वो कहता है जी कि इस बार किडनी पेपर में नहीं आएगा. और वो किडनी छोड़ देता है पढ़ना. Yes. पेशेंट बगैर किडनी क्या आएगा? No, बिल्कुल नहीं आएगा. Makes sense. That's the point. So पढ़ें सब. और एक टीचर हमारे हुआ करते थे. वो कहते थे कि
पेपर्स में जाने से पहले ना इतनी प्रिपरेशन करो कि एग्जामिनर को ये कहो पूछ क्या पूछता है, that's really nice. rather कि you just try to like hide behind excuses कि यार वो मुश्किल आ गया था, पेपर मुश्किल था, या ये मुश्किल था, या वो मुश्किल था, इसलिए नहीं करो। Yes. पूछ क्या पूछता है वाली कंडीशन होनी चाहिए। सो जब वो वाली कंडीशन आएगी ना, तो जब उस वक्त आती है जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। This is what my parents tell me as well. They're like, if you're confident enough, they're like, अगर तुमने किया है, if you've given your maximum, if you're confident enough, then the paper will not be difficult for you. They're like, मेहनत ज़ाया नहीं होती. It never goes to waste. Especially my father, he's like always telling me this. So I feel like I agree with you. Yeah. You're actually right, because अगर हमने मेहनत ही नहीं की होगी, if we haven't given our 100%, not taken into account सारे different chapters and topics that are there, तो फिर कैसे तैयारी? I always say in my class के starting की classes के अंदर I always say कि आप में से कितने बच्चों का रट्टा अच्छा है? How many of you are good in cramming? So few of them Agree, yeah. always say कि सर हम बहुत अच्छा रट्टा लगाते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है इसका। बिल्कुल सही। There is no फायदा at all of cramming, क्योंकि रट्टा लगाने से आप क्या करेंगे? वो आपसे पेज नंबर के लिहाज से लाइन्स तो पूछेगा नहीं। Exactly. Unless and until कि आपको clear understanding होगी, then you can maneuver around. वही concept needs to be clear. Concept needs to be clear. Yes. So another question: if you were to tell something to your younger self, young Sir Danish, what would that be? Wow. Young myself. Yes. Two things. Number one, study something that is applicable. That's true. सही है। और एडवाइस उनसे लो जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ किया है। क्योंकि ओरिजिनली व्हाट आई बिलीव इन कि हम पढ़ते हैं वो जो अम्मी अबू कहते हैं, ठीक है? बहुत दफ़ा यही होता है। Exactly. और अम्मी अबू हमसे तकरीबन कोई 20-30 साल बड़े होते हैं। जनरेशन डिफरेंस। सही है। अब तो जनरेशन गैप भी तकरीबन कोई 5 years 6 years का रह गया है सिर्फ। अब तो जो चैट जीपीटी आई है उसे तो दुनिया Everything has चेंज। वेब 3.0 आ रहा है, अब क्या चीज़ें होनी शुरू हो गई हैं, तो थिंग्स आर वेरी डिफरेंट नाउ। तो जो लोग आपको एडवाइस करते हैं ना, वो एडवाइस वो करते हैं जो उन्होंने अपनी लाइफ में किया होता है। What they think is right. सही है? उनके एरा में। उनके लिहाज से। और व्हाट आई बिलीव इन कि अब इतने सारे नए वेंचर्स खुल चुके हैं कि आपके जो पेरेंट्स हैं या जो फैमिली मेम्बर्स हैं, वो बाज़ चीज़ें तो डाइजेस्ट ही नहीं कर सकते कि यूट्यूबर बनेगा, अच्छा कंटेंट क्रिएटर बनेगा। Perception ऐसा create होगा ना सर, like they perceive YouTubers as a side. मशाल सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। I tell you my story. When I graduated, सही है ऑडियंस, when I graduated, सही from Zabast, I did my MBA, ठीक है, and everybody was thinking कि दानिश should join a bank. I started teaching. और ख़ानदान में मुझे लोगों ने एक फेलियर समझना शुरू किया था। ट्यूशन पढ़ाते हो, बस अपना कोचिंग कब खोलोगे? एंड दिस इज, और देन आई स्टार्टेड यूजिंग माय मास्लो थ्योरी जिन्होंने नहीं पढ़ी हुई ना Yes. वो मास्लो थ्योरी पढ़ें ज़रूर। उसमें होती है सोशल Hierarchy of नीड्स जी, सोशल नीड्स होती है। सोशल नीड्स वर डिस्ट्रॉयड एंड देन आई केम अप विद द वर्ड एकेडमिक कंसल्टेंट। और फिर मैं एकेडमिक कंसल्टेंट कहना शुरू कर दिया अपने आप को, और टीचर से हट के मैं एकेडमिक कंसल्टेंट बन गया। इज्जत होनी शुरू हो गई मेरी। सो ये सारे नाम हैं। आई थिंक कि लोगों के जो परसेप्शन है ना, करियर्स का जो परसेप्शन है, इट्स नॉट अ करियर, इट्स अ पोस्ट। आप ब्रांच मैनेजर हैं, आप पता नहीं कौन से एग्जीक्यूटिव हाई के असिस्टेंट सेक्रेटरी लगे हैं, आप वाह हो गई। आपकी खुद की ग्रोथ क्या है, आप खुद कितना इंट्यूटिव हैं, कितने इनोवेटिव हो रहे हैं, कितनी आपकी लर्निंग बढ़ रही है, क्या वाकई आप वो काम करना चाह रहे थे लाइफ के अंदर? बट आई फील लाइक कि टीचर एज अ प्रोफेशन बहुत रॉन्गली परसीव किया जाता है. इट्स एक्चुअली अ वेरी रिस्पेक्टेबल पोस्ट, बट इट्स नॉट गिवन दैट रिगार्ड, दैट ड्यू रिस्पेक्ट. स्पेशली आई थिंक हमारी जनरेशन के अंदर आई फील लाइक देयर इज दिस ह्यूज misconception that because we're paying you, so you have to do this to us, you have to follow this, you can't talk to us in that way, this way. What are your opinions on that? Okay, let me be very blunt about it. सही है, कहा ज़रूर जाता है इट्स अ नोबल प्रोफेशन, ठीक है, कहा ज़रूर जाता है कि जी यू आर लाइक यू आर द मेंटोर और सो ऑन एंड सो ऑन. कभी इज्जत उस लिहाज से देखी नहीं जाती, क्योंकि
अगला सवाल क्या होता है, बच्चे ने क्लास के अंदर जो स्कोर किया है, क्योंकि मेरा बच्चा है, मैंने अपने बच्चे के लिए कभी भी फर्स्ट पोजीशन से नीचे कभी देखी नहीं है और मेरा बच्चा तो कभी गलत कर ही नहीं सकता, आपको चेकिंग करनी नहीं आती। अब वो You've heard mentorship- this? क्या Oh my god, और really? मैंने मकसद मुझे एक पेरेंट की कॉल आई थी, एंड दिस इज़ वन ऑफ माई अनफॉरगेटेबल कॉल्स। एक पेरेंट की कॉल आई मुझे आफ्टर द रिजल्ट्स, मेरे बच्चे का बी ग्रेड आया है, मैं तो बच्चे का ए ग्रेड चाह रही थी। Really? मैंने उनसे अगला सवाल किया, मैंने कहा आपने ए लेवल्स किया है? तो उन्होंने कहा नहीं मैंने MBBS किया है। मैंने कहा आपकी पोजीशन आई थी? नहीं मैंने फर्स्ट डिवीजन। मैंने कहा फर्स्ट डिवीजन इज 65%। That's true. मैंने कहा आपके हस्बैंड ने कभी टॉप किया? तो उनका नहीं। मैंने कहा जब DNA में ही नहीं है तो I agree. और frankly speaking I literally said Yes. this, ठीक है, अच्छा सर ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़। See, so like, दैट्स द पॉइंट। पॉइंट सिर्फ इतना नहीं है कि आप देखें, मिशाल हमेशा याद रखो, रिजल्ट एक प्रोसेस का एक हिस्सा है, इट्स नॉट अ कंप्लीट प्रोसेस। part of the journey. या ठीक है, हाँ आपने रिजल्ट्स लिए हुए हैं, अच्छे Yes. रिजल्ट्स हैं, ब्रावो, Yeah. ठीक है, आपके रिजल्ट्स नहीं हैं, इट डजंट मेक यू अ फेलियर। You need to try harder. सही है, और इवन नॉट हार्डर, यू कैन बी स्मार्टर देन द पेपर। That's सही है, true, यू कैन yes. बी स्मार्टर देन द कंटेंट यू हैव रेड, ठीक है Makes ना। sense. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यार आपके अंदर देखो, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस रिजल्ट्स के बिहाफ पे जो टीचर्स या जो सोसाइटी तोड़ती है ना किसी स्टूडेंट के अंदर, Yes. वो असल में किसी की पर्सनैलिटी डेंट डालता है। No, सही I है? agree on this. I agree. ऑलवेज बिलीव इन कि अगर किसी का बच्चा फर्स्ट नहीं आया, सेकंड थर्ड नहीं आया, फिफ्थ आया, ब्रेकिंग द आइस राइट नाउ, मैं अपनी ज़िंदगी में कभी टॉप 3 में नहीं आया। सही है, सो But sir, I believe that this rank system, I don't think it's much of a. What do you guys think? Should it be even considered? Like I feel like I read this article. उसमें था कि Singapore has annulled their rank system. They have stopped ranking their students. Do you feel like it's actually good to rank the students on the base of just their academic progress? देखिए, रैंकिंग द स्टूडेंट इज फाइन, लेकिन लेबलिंग द स्टूडेंट विद देयर रैंक्स इट्स रॉन्ग, Yes, ठीक है। makes sense. और हमेशा ये याद रखो कि आपने, चलो लेट मी गिव यू जस्ट अ सिंपल एग्जांपल, अ स्टूडेंट केम फर्स्ट, Yeah. सही है, थम्स अप, क्लास में एक ही स्टूडेंट था, Yes. सी दैट्स द पॉइंट। सो अब एक बच्चा है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी क्लेम किया है कि मैं कभी टॉप 3 में नहीं आया ज़िंदगी Yes. में, सही है, जबकि मेरी बहन जो है वो पाकिस्तान पोजीशन होल्डर है, ठीक है, उनके शायद 4-5 दिमाग हैं, सही है। और मेरा ख्याल है कि ख़ानदान के अंदर मेरी 2 बड़ी बहनें, एक भाई है मेरा, तो हमेशा हर एक से पूछा ही जाता था कि रिजल्ट्स पे अबू आते थे पूछने के लिए कि क्या चाहिए, सही है, और मुझसे पूछते थे पास हो गए, ठीक है। मेरी परसेंटेज बुरी नहीं होती थी, अब मैं क्या करूं, फर्स्ट आने वाले के 96% है, सही है, Yes. मेरा 27th ग्रेड आ रहा है, मेरी परसेंटेज 85% है, तो व्हाट्स रॉन्ग इन इट? Nothing wrong. I don't think सही it's है, wrong. तो अगर You're मैं- scoring a decent A. सही है, तो मैं अब्बू को हमेशा ही बोलता हूँ यार परसेंटेज चेक करो ना यार, फिर 85 बुरी परसेंटेज नहीं है यार, Yes, it's ठीक pretty है, decent. लेकिन अब मैं क्या करूं, वो 96, और वो मेरा ही सगा दोस्त है, सही है, जो बचपन से मेरे साथ पढ़ा है, वो था जीनियस था, ठीक है, लेकिन वो Yes. सिर्फ जीनियस था, ठीक है। There's this मैं factor as स्पोर्ट्स well. में भी था, मैं अपने डिफरेंट सोसाइटीज़ के अंदर भी था, मैं पढ़ता भी था, All-rounder kind of thing. काइंड ऑफ थिंग। वो मेरे लिए 85-86% बुरी नहीं थी, लेकिन पॉइंट पता है क्या है कि जब आप रैंक सिस्टम से किसी बच्चे को टैग करना शुरू करते हैं ना कि यू आर अ लोअर टायर स्टूडेंट, यू आर अ हायर टायर स्टूडेंट, फिर उसकी पर्सनैलिटी डेंट पड़ना शुरू होता है। हो सकता है किसी XYZ रीज़न की वजह से वो परफॉर्म अच्छा ना कर पा रहा हो, बिल्कुल। सही है। आजकल बहुत सोशल प्रेशर है, आप लोग जिन सोशल प्रेशर्स I में can आप लोग, relate. ब्रावो टू यू गाइज, मकसद अगर मैं अपने लिहाज से आप लोगों की एज में आकर अब परफॉर्म करना शुरू करूँ, आई माइट नॉट बी क्लियरिंग एनी पेपर, क्योंकि हमारी बारी में Mental pressure especially. मेंटल प्रेशर क्या, हमारी बारी में सिर्फ 2 चैनल हुआ करते थे, PTV और NTM, फुल स्टॉप। मैं इतना पुराना Yes. हूँ,
मैं काफ़ी पुराना हूँ. Yes. सही है. I told you, I'm pretty old. लेकिन VCR हुआ करता था, वो भी अब्बू ने मना किया हुआ था कि जी आपने मैट्रिक के बाद देखना है. सही है, या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बाद देखना है. सही है. डिश होती नहीं थी, केबल टीवी का कॉन्सेप्ट था नहीं. Yes. फ्लैट्स में हम लोग रहते थे, एक घर में किसी के पास 7 चैनल की या 8 चैनल की या 10 चैनल की एक डिश लगी होती थी. वो तो अमीर होते थे. मतलब स्वैग लेवल ये था हमारी बारी में. मतलब जब व्हेन आई वाज इन योर एज, MTV. Yes. सही है. MTV के चैनल चार्ट्स कोई देख लेना तो Cool है वो कूल है. Yes, I've heard this from my dad. Yes. सही है. तो अब आप लोग सोशल मीडिया का, आप लोगों के पास बम्बार्डमेंट है, आप लोगों We को have social- everything access आप लोगों को to. दरअसल सोशली आपको Yes. ई लाइफ पे तो जीनी है. हमारी तो ई लाइफ थी नहीं. हमारे पास तो we can live multiple lives actually, sir. Yeah, Like exactly. not just one life. दैट्स द रीजन. वो एक दूसरे के ओवरलैप हो रही होती है. Yes. तो दैट्स पॉइंट. So उसकी वजह से social pressure, mental pressure, and then peer pressure, everything else. There's too much. One last question. Passion, profession, align होने चाहिए. जरूर. And That's the best combination, I guess. अगर passion and your profession are same, then definitely you can be creative you will enjoy your job. and you enjoy your job and you definitely will try to be creative. सही है. And then आपको फिर competition मज़ा देगा. Yes. ठीक है. I agree. अगर आपका And passion. parents को भी इस चीज़ के ऊपर they need to be supported मैं of it. स्टूडेंट काउंसलिंग से ज़्यादा पेरेंट्स काउंसलिंग के बारे में बात करता हूँ. Because alhamdulillah, like if I talk about me personally, तो alhamdulillah I am privileged कि I shifted to commerce like midway into my college. I think October November में sciences से commerce में आ गई मैं. पर proper sciences student. So my parents were really supportive. They did not left any stone unturned. They never left any stone unturned. They were always, abhi tak in fact they are. But I feel like most of my friends, the people I know, unke parents they're not as supportive much. So they end up doing the subjects that their parents are telling them to do. Exactly. So That's the problem. what are your opinions on that? You think that's right? I always say students counseling से ज़्यादा parents counseling होनी लाजमी है. Definitely. क्योंकि अगर आप पेरेंट्स को नहीं बताएंगे इस चीज़ के बारे में कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग फॉर देम, और अभी तक हमारे यहाँ जो पेरेंट्स हैं ना वो ओवर शेडो करते हैं गाइडेंस. वो ये शायद हमारा इंडो पाक का शायद ये एक माइंडसेट है, Concept कॉन्सेप्ट है create कि वी ओवर शेडो विद केयर एंड कंसर्न एंड लाइक it's more of a choking thing. Yeah. Than Budging into enlightening, their lives, yeah. and rather enlightening or grooming them. So वो अपने ही बात चीज़ें होनी चाहिए डेफिनेटली. मैं ये नहीं कहता कि खुला छोड़ दो, लेकिन yes जो स्टडीज़, जो प्रोफेशंस, जो पैशंस आ रहे हैं, you need to. A student needs to learn his own within his own space. Yeah, her own space, her own capacity. True. So True. that is the epitome of success. True, When you that's- learn from when you stand on your feet and you learn, when you go into the practical world a little earlier than you should have. Because अगर हम पूरी life parents के साथ रहे, do you agree? That wouldn't be. Then what is our point in learning? हमारे पास कोई freedom of expression ही नहीं होगा. True, that's the point. लेकिन point फिर वही रहता है कि बाज़ औक़ात आपको जो एरियाज it needs to be confined. जितने भी कन्फाइंड हैं उनमें आपको रहते हुए सोसाइटल गाइडेंस या लिमिट्स के अंदर The boundaries that we need to set. बाउंड्री सेट करने के लिए आपको. अच्छा मिशाल, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ. इज देयर एनी अनफॉरगेटेबल मोमेंट? Oh, there are a lot of unforgettable moments. We should not make them public, I think. I'm not like, yeah, ऐसा नहीं बताओ जो नहीं, सेंसर नहीं. करना पड़े. ऐसा बताओ जो It's इनलाइटनिंग हो. मैं academic related बताती हूँ. I was in grade 6 or 7 I think, and I still love math. Like I enjoy math, but in grade 6 or 7 I did not enjoy math as much. And I agree with your previous वाली बात कि teacher से बहुत impact पड़ता है. तो I was in grade 7 and ये अच्छा I am actually थोड़ा ना वो पढ़ाकू वाली category जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं ना, तो I fall into that. तो it was my final exam grade 7 का math exam, and मुझसे कोई last page के 4-5 questions रह गए थे because I did not have enough time. So I got a B in math, which is actually, which is I know it's good, but like for me it was the only B I got abhi tak. Okay, So mashallah, like, mashallah. so that is an unforgettable memory because I cried a lot on that day, क्योंकि it was unexpected for me, especially coming out of math. So I think yes, that. Unforgettable moment. Yeah. Happens a lot. So now we will be having a rapid fire round. Sir Danish, you have to give one word answer to every question I ask you. And the rapid fire round starts now. Who is your favorite student in your class? Right now or any other batch? It could be anyone, yeah.
Siraj, yeah. Okay. People who you admire the most. Honest. Kind of people, yeah. Honest. Disadmire the most. Liars. Okay. And if you were not a teacher, what else would you have been? Software engineer. Oh, that's nice. And what is your phrase, your catchy phrase, the signature phrase at college? ठीक है. That's it. That's it. Oh, anything that you would like to share with our fellow students, with my fellow students? Okay, first of all, वो मूवी का एक स्टेटमेंट है 3 इडियट्स का, सही है ना? पढ़ना इसलिए नहीं है, मैं उसको रिफ्रेश कर रहा हूँ जस्ट इन माय वर्जन. इसलिए नहीं पढ़ना कि ग्रेड लेना है, सही है. पढ़ना इसलिए है कि समझ आए, अप्लाई कर सको, लोगों को समझा सको, उसको सही तरीके से यूज़ कर सको. एंड डू नॉट गो फॉर क्रैमिंग, शॉर्टकट्स और एक्सक्यूज़ेस, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है इनका, ये घूम के आएंगे सामने. सो हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी, ये 2 चीज़ें हैं जिनको अगर आप यू जस्ट फॉलो इट, डेफिनेटली inshallah One can do wonders. One can do wonders. With this, everyone, we will be concluding our Maritime Mentors. Hope you had a great time. Looking forward to hearing from our other teachers. Till then, bye-bye.